parallel operation of alternator, or we can say that parallel operation of a three-phase uh, generator. If we see the first question arises in mind, why we go to the parallel operation of a three-phase alternator. This will be our uh, existing power structure in which we have a number of generating station. That means generating station 1, if say this will be generating station 1, this will be generating station 2, this will be generating station 3, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. We have a number of generating stations. For example, this will be taken as a Nathwa Jakri, this will be another Bakra Dam, and other things. These all are interconnected. That is known as interconnected system. But when a new generator or new alternator or new power plant is come in existence, how it will be connected to the existing system? How it will be connected to the existing system? For example, the generating voltage here will be 11 kV, here it will be 30.2 kV, and here will be little bit another 22 kV. Then we have a step up transformer. We can synchronize with this line. For example, this will be a 66 kV line, this will be a 132 kV line, this will be again 132, and this will be 440 kV. That voltage level can be stepped up and stepped down as per requirement by help of transformer. But how this alternator will be connected with this grid, that system is known as synchronization. That term is known as synchronization. That means connecting of a existing generator with grid, as well as a for example, any power plant in earlier, yeah, that power plant has only one alternator. After some time we connect another power plant to increase the capacity or other these things, we connect another generator. Then this process is also known as synchronization. That means alternator with connected to grid, or as well as alternator connected with alternator. Both the process are known as synchronization. That means synchronization of two alternator, or we can say this synchronization of one alternator with the grid. That is known as parallel operation. Why it is called parallel operation? Because it is connected parallel to the existing system. फॉर एग्जाम्पल ये पावर प्लांट हमारे पास नया आया, बट ये लाइन तो थ्री फेस हमारे पास पहले से एग्जिस्टेड थी. हाउ दीज थ्री unit will be connected to this system, that is known as parallel operation. And this will be the load. It is a one area, this will be another area, this will be another area, this will be another area. That means connection of any alternator with existing alternator, or connection of alternator with grid, is known as parallel operation of a alternator, which is carried out by a common process or popular process known as synchronization. Or in another way we can say that synchronization of a alternator. When number of different power station along with the number of alternator, that means we have a number of power station and number of alternator are connected to a grid, is called the parallel operation of a alternator. However, the output of any single generator is very small as compared to the interconnected capacity. That means the if whole demand of if we say northern grid demand is of somewhat gigawatt, but no one generator or no one power plant is capable to develop that amount of power. That means this can be added up by small power. कुछ power ये generate करेगा, कुछ है, depend upon the irrespective of capacity. कैपेसिटी वहां पे इशू नहीं है, 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 3 मेगावाट, दैट इज नॉट इशू. इशू इज इशू आर द अनदर टर्म. What are that issue, or what are the condition for parallel operation, or why we do parallel operation, or we can say advantage of parallel operation. It is similar to the parallel operation of a three-phase transformer, which we have studied in the last course. The first advantage, or you can say that the need of parallel operation, is continuity of supply. How the continuity of supply? For example, for instance, this whole structure will be depend upon this power plant. There will be ना ये पावर प्लांट है ना ये है हमारे पास, इस टाइम मान के चले हम कोई भी पावर प्लांट दें. इफ दिस पावर प्लांट इज दिस जनरेटर इज फेलियर, होर सप्लाई विल बी शट डाउन. That continuity will be maintained by the number of by number of alternator as well as number of substation.
or we can say number of power plant, and any power plant have a number of alternator. The continuity of supply or service is one of the important requirement for any electrical apparatus. If one alternator fails, the continuity of supply can be maintained through the other healthy unit. This will ensure the uninterrupted power supply. That means uninterruption of supply will be ensured by such connection. The first advantage is this. Second one will be the enhanced efficiency. How we enhance the efficiency? That means a one system is this and this system is this. If, for example, the whole this grid have the demand of 100 megawatt, for example, 1000 megawatt, and we have a, yeah, we can say simple for 8 8000 megawatt. That means each unit have our 1000 capacity. But a in a daytime we have a demand of maximum demand, we can say that 75,000 megawatt. But in night we have a demand of only 2000 megawatt. Then what we do? अगर हम एक ही यहाँ पे पावर प्लांट लगाते हैं तब तो उसको हमें 8000 कैपेसिटी पे ही चलाना पड़ता है, उतनी पावर इनपुट पे लगती है, और आउटपुट पे कितनी मिलती है हमें? 200 मेगावाट, 2000 मेगावाट। तो दो 2000 डिवाइडेड बाय 8000, दैट मीन्स वी हैव ओनली able to calculate approximate 40% efficiency if system is a lossless system. But if there will be some losses, then it will be below than 40%. But with number of unit, we can do that. Shut down 6 unit and only operate two such unit which have a highest technology. That means which have highest advanced technology generator, or where the input source is input power is free. For example, for power plant 1 it is a thermal power plant, this will be a nuclear power plant 1 and 2, these are the hydro power plant, and further these are the coal power plant but older plant. Then where we go where the input energy have a less cost. So where will be the input less cost? That is through hydro. So then we only operate unit 4 and 5, हम इनको नहीं चलाएंगे। फिर हमारे पास बढ़ जाएगा तो हम लास्ट में किस पे जाएंगे? जो ओल्डेस्ट प्लांट है, क्योंकि ओल्डेस्ट प्लांट ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी, least efficiency, least efficiency. So that will be the enhanced efficiency. That means how we enhance the overall efficiency, that can be enhanced by using the option of a number of alternator which are operated in parallel operation. If we have a single unit, that this way of enhancing of efficiency is not possible. Is it clear? Is it clear? Hello? Yes, sir. This point is clear? Okay. यस सर, Okay. रिपीट कर दो एक बार। This will be the simple. See this. Take this example. Is this screen is visible? तो आप सिंपल इसी का ही एक एग्जांपल लीजिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास है जो डिमांड, मैंने 8 यूनिट यहाँ पे ले ली है, सबकी कैपेसिटी 1000 यूनिट है। फॉर दिस एक्सप्लेनेशन, किसी टाइम पे हमारे पास 1000 मेगावाट, इस ग्रिड की जो टोटल डिमांड है उस टाइम पे माना 75 100 मेगावाट है। 8000 अगर इसकी हम मान के चले, 7500 मेगावाट इसकी यूनिट है, तो उस टाइम पे हमें सारी चलानी पड़ेगी, वट एवर विल बी द एफिशिएंसी। बट इन our base load capacity or less load demand in night hours, if the demand is only 2000 megawatt, then what we do? तो उस टाइम हम सारी यूनिट तो नहीं चलाएंगे, अगर वो एक ही यूनिट से कनेक्टेड होती तो हमें सारी चलानी पड़ती। बट जब हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट है तो हम क्या करेंगे? वी गो टू ए वी हैव ए ऑप्शन, गो टू ए हाईएस्ट एफिशिएंट पावर प्लांट, जहां से 2000 हमें हाईएस्ट पे मिल पाए। तो हम हाईएस्ट कहाँ जाएंगे? एफिशिएंसी कहाँ से कैलकुलेट करेंगे? और आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। तो इनपुट पावर क्या है? उस टरबाइन और उस प्रोजेक्ट चलाने के लिए जो हम सोर्स यूज कर रहे हैं। तो अगर जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो एंड थर्मल, अगेन वन इज ओल्डर थर्मल एंड अनदर वन इज थर्मल विच इज विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। देन वी गो टू द इनपुट इज हाइड्रो इज लेस, अगर वहां पे हमारे पास विंड है तो वी गो टू द विंड। तो हम उस प्लांट को देखेंगे दो कंस्ट्रेन देखते हुए, पहला कंस्ट्रेन कि उस सिस्टम की अपनी एफिशिएंसी क्या है, दूसरा कंस्ट्रेन उसके लिए इनपुट क्या हमारे पास अवेलेबल है। इज इट क्लियर? इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी हैव नंबर ऑफ ऑपरेशन, नंबर ऑफ अल्टरनेटर इन पैरेलल। तभी आपने देखा होगा कोई भी यूनिट है, किसी भी पावर प्लांट में आप जाइए, चाहे 5 मेगावाट है, 50 मेगावाट है, चाहे 1500 मेगावाट है, उसमें किसी में भी सिंगल जनरेटर नहीं होता है, दे हैव ए मल्टीपल जनरेटर। दैट इज द गाइडलाइन। आप चाहे आपने 1 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है तो यू नीड मिनिमम 2 यूनिट।
दैट मीन्स 0.5 0.5। अब आप कितनी भी ले जा सकते हो, बट मिनिमम 2 इज द रिक्वायरमेंट। अदरवाइज 2 से कम सिंगल यूनिट पे आपको कहीं भी है जो एप्लीकेशन या अप्रूवल नहीं मिलेगी प्रोजेक्ट डेवलप करने की। तो डिजाइन उस हिसाब से आप डेवलप करते हैं। देन इन दिस वे दिस विल बी द बेस्ट मेथड फॉर enhancing the efficiency. Another will be the easy to maintenance. If we have a, again same diagram, if we have a number of unit और we need maintenance, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 8 यूनिट है, हमें एक की मेंटेनेंस करने की पड़ी, 7 हमारी चल रही है, तो हमने सबको सिर्फ क्या करना है, 1/8 उसकी कैपेसिटी जो 1/8 है उनको ओवरलोडेड कर देना है। 10% हमारे पास वैसे ही अलोएबल है, ठीक है। तो 8 में हम 1,000 तो वैसे ही 80 10% तो वैसे ही निकाल सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी ओवरलोड कैपेसिटी पे हम फुल डिमांड लोड को भी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए जो अकोमोडेशन कर सकते हैं। बट अगर वो सिंगल यूनिट ही हो, वो पॉसिबल हमारे पास वहां नहीं है। Another one will the load growth. This will be the main disadvantage. So I give at a green signal. Load growth means as the population is increased, as the urbanization is increased, as the industry number of industries increase, the electricity demand will be increased day by day. If we go now, the our vehicle which were earlier operated with fuel and petrol and gas, they are now operated with electricity. That means the demand of electricity is day by day enhanced, but the sources for generation of electricity are limited. आपने देखा होगा कुछ थर्मल पावर प्लांट तो इंडिया में बंद भी हो चुके हैं। तो उनके जो बंद होने का सबसे बड़ा कारण है दैट इज हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट। कोल की कॉस्ट बढ़ रही है, धीरे धीरे कोल खत्म हो रही है, साथ में वो प्लांट डे बाय डे है जो खत्म हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, द टिपिकल एफिशिएंसी ऑफ आवर थर्मल पावर प्लांट इज बिलो देन 35%। एफिशिएंसी इज वेरी लो और ऊपर से प्लांट और ओल्ड हो रहा है, तो पर यूनिट कॉस्ट जनरेशन इज वेरी हाई इन थर्मल पावर प्लांट। एंड अनदर कंसर्न इशू इज pollution. Thermal power plant develop pollution, that is in term of ash as well as burning of coal which emit the CO2, carbon dioxide as well as our ash. So ash handling is a very difficult task in thermal power plant. Same situation is the automobile industry. In automobile industry there will be a large emission of CO2 gases, and moreover the petroleum and gas product are exhausted within some years, up to 40 years में जो खत्म हो जाएंगे। Then we need to go a new alternative sources for transport industry, that is electric vehicle which will be operated on the electrical battery, and but battery is further charged through the electricity. Then question arises how this electricity come। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी भी फिर कोल से जनरेट होके आ रही है, देन साइकिल तो वहीं पहुंच गया है, एवरेज साइकिल तो नंबर ऑफ प्रोसेस हमने इंक्रीज कर दिया। देन वी गो टू ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट मीन्स कि वो एनर्जी भी हम ऐसी जगह से जनरेट करें जो है जो लेस CO2 एमिट करे। अदरवाइज तो क्या है, कोल से पहले आपने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, कुछ CO2 हुआ, एमिशन हुआ, उस इलेक्ट्रिसिटी से फिर गाड़ी चली, इलेक्ट्रिकल क्या बोलते हैं चार्जिंग की आपने, तो बात तो वही है, चाहे आप पेट्रोल सीधा यूज करो चाहे वो करो, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस बढ़ गई। देन वी गो टू ए प्योर इलेक्ट्रिकल व्हीकल, दैट मीन्स विच whose battery are charged through the renewable energy sources. That is the main motive. That means load is increases day by day, so we need more power plant instead of conventional. The India and world is moving toward the our non-conventional power, electrical power generation technology. Conventional technology are the technology which are existing, thermal, nuclear, and all this that. And non-conventional are the small hydro, wind, solar, and these are the some non-conventional technology for electrical power generation. Then what are the conditions? Conditions are similar to that of our three-phase transformer. For example, this will be the existing generator or existing power plant. This will be the new. How it will be connected to a common grid? This will be a grid, and this is our load. Then first is that means the RMS line voltage. Line voltage is phase to neutral voltage of two alternator must be equal. पहली condition है में इन दोनों की equal होनी चाहिए. For example, if it generates the 415 volt, this should be 415 volt. Two generator must have the same phase sequence. That means ABC, ABC, positive phase sequence or negative phase sequence. The phase angle
of two phases must be equal. That means angle between phase angle is nothing. It is the angle between voltage and current. That should be equal. The phase angle play a very vital role. This phase angle play a very vital role during the parallel operation as well as desynchronization. आपने एक अभी ध्यान होगा आपको, अगर 8 अगस्त 2011 को इंडिया में ब्लैकआउट हुआ था. एट दैट टाइम आई एम एट जम्मू, नहीं सॉरी श्रीनगर. पूरे इंडिया की है जो पूरी नॉर्थ ग्रिड की पावर सप्लाई फेलियर हो गई थी. दैट इज ड्यू टू चेंज दिस फेस एंगल एज वेल एज लोड एंगल ऑफ आवर सम पावर प्लांट. किन्हीं किन्हीं पावर प्लांट का लोड एंगल चेंज हो गया, उसका इंपैक्ट अगले पे गया. लोड ओवरलोड कैपेसिटी अगले का भी चेंज हुआ. जैसे 2 का हुआ 4 सा कॉम्युलेटली इफेक्ट विद इन ए 5 मिनट होल नॉर्थ ग्रिड विल बी शट डाउन. हमारी सारी नॉर्थन ग्रिड क्या हो गई थी? शट डाउन. दैट इज ड्यू टू दिस फेस एंगल एज वेल एज आवर दिस टॉर्क एंगल, लोड एंगल. इन दो के कारण ही हमारे पास हुआ था. दैट concept we will analysis in the steady state analysis. Then next will be the outgoing frequency. That means frequency of both the that will be spent. That means frequency depend upon our n is equal to 120 f by phi, or we can say that this frequency is directly proportional to speed. Speed should be same. Then we can be synchronize this. अगर speed आपने same करनी है, that means अगर यहाँ पे speed कम है इसकी, इस जनरेटर की ज्यादा है, तो मतलब हमने नंबर ऑफ पोल हमें चेंज करना पड़ेगा. अल्टीमेटली भी हमने n को कांस्टेंट रखना पड़ेगा ताकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी सेम रह पाए. दैट कैन बी इनहांस्ड बाय नंबर ऑफ पोल. यहाँ पे 4 पोल का जनरेटर हो सकता है, यहाँ पे स्पीड कम है, वाटर का फ्लो कम है, तो यहाँ 6 पोल का कर सकते हैं, 6 पोल. बट दीज आर द कंडीशन फॉर पैरेलल ऑपरेशन. तो दैट मीन्स वोल्टेज, फेज सीक्वेंस, फेज एंगल एंड frequency. Then we can synchronize, we can connect these alternator with each other or in parallel operation, and we use a switch. That this will be the existing system. एक हमारे पास ग्रिड है जहां पे पावर सप्लाई चली हुई है, इसको हमने दोबारा से इसके साथ जोड़ना है. हमने किस टाइम पे जोड़ना है? जब ये चारों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, और उस टाइम को बोलते हैं हम, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन मेथड. दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइजेशन मेथड. दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल इन लैब, बट प्रेजेंटली इन आवर इंस्टीट्यूशन सेटअप इज नॉट अवेलेबल. स्पेस हमारे पास है नहीं है, अदरवाइज इस प्रैक्टिकल का सेटअप अवेलेबल नहीं है. बाकी सारे प्रैक्टिकल का सेटअप हमारे पास अवेलेबल है. तो उस पे टाइम पे हम करते क्या है? व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर सिंक्रोनाइजेशन? मतलब सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग है, एक एग्जिस्टिंग ग्रिड है, उसके साथ जब न्यू ग्रिड को है जो कनेक्ट करना है, तो आपने किस सिचुएशन पे इस स्विच को क्लोज करना है? दैट मीन्स वी शुड फुलफिल दीज 4 कंडीशन. ये चारों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, उसी टाइम इसको सिंक्रोनाइज करें, देन इट डिलीवर पावर. अदरवाइज अगर आप उस सिचुएशन से पहले करेंगे तो ये इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा. देखिए पहला टास्क है हमारे पास वोल्टेज को मेजर करना. दैट मीन्स द मेथड ऑफ कनेक्टिंग ऑफ इनकमिंग अल्टरनेटर सेफली टू द लाइव बस बार इज कॉल्ड द सिंक्रोनाइजिंग. लाइव बस बार इज एट दैट टाइम दिस विल बी द लाइव बस बार, क्योंकि ये जनरेटर पहले से कनेक्टेड है, इसमें कुछ पावर फ्लो हमारे पास जा ही रही है. लाइव मीन्स देयर विल बी सम फ्लो ऑफ करंट टू द लोड. अब इस जनरेटर बी को कैसे हम कनेक्ट करें, उस प्रोसेस को बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन. The equality of voltage between the incoming alternator and the bus bar can be easily checked by voltmeter. पहली कंडीशन ही हमारे पास क्या है? वोल्टेज की. तो वोल्टेज कैन बी चेक्ड. एक वोल्टमीटर इनके बीच में आप लगा दीजिए, कितनी वोल्टेज यहाँ रही है, एक वोल्टमीटर आप यहाँ लगा दीजिए. देन इजिली वी आर एबल टू कैलकुलेट द वोल्टेज. जैसे ये अगर वोल्टेज बराबर नहीं है तो आप इस जनरेटर के प्राइम मूवर की स्पीड को बढ़ाइए. स्पीड बढ़ेगी हमारे पास. इफ एन विल बी इंक्रीजेस देन आवर जनरेटेड ईएमएफ विल बी इंक्रीजेस. और आइदर स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते, जैसे टरबाइन है, वाटर टरबाइन कांस्टेंट पे मूव कर रही है, देन वी हैव अनदर ऑप्शन, because the formula this EMF will depend, or generated EMF will depend only and flux, and another is flux. Flux can be varied by excitation, so we can increase the excitation current. आप excitation current करेंगे, that means जो यहाँ की वोल्टेज होगी और यहाँ की वोल्टेज हम क्या करेंगे? इक्वल इन ऑल फेसेस. सीधी वोल्ट मीटर से हो जाएगी. चलो ये कोई हमारे पास चली हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 415 वोल्ट जा रही है, हम लैब का ही एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ पे भी हम एक्साइटेशन के थ्रू इतना बढ़ा देंगे कि 415 वोल्ट फिक्स कर रही है, तो पहला काम हमारा खत्म हो गया. Then next will be the phase sequence of the alternator and the bus bar is checked by phase sequencer indicator. We have a small instrument connect in all these three, it will be show. That means आप इसको कनेक्ट करेंगे, either it will be move clockwise or it will be move anti clockwise. अगर हम यहाँ पे लगा देंगे इट विल बी मूव क्लॉकवाइज, फिर आप इन तीनों पॉइंट पे लगाएंगे अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, दैट मीन्स बोथ आर इन
सेम पोजीशन इफ इट विल मूव एंटी क्लॉकवाइज वी जस्ट रिप्लेस टू फेसेस, किन्हीं दो को आपने इंटरचेंज करना है। जब दोनों में सेम आ गया तो फेस सीक्वेंस भी हमने चेक कर लिया है। थर्ड विल बी द फेज एंगल, दैट फेज एंगल डिपेंड अपॉन द लोड। तो लोड अगर एक कॉमन ही लोड है, रेजिस्टिव लोड है, तो जितना इस करंट पे सेम इसी करंट पे जाएगा, तो इसको हमें अनडिजायरेबल है, इसको चेक करने की हमें जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर ये थोड़ा बहुत चेंज भी रहेगा तो ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा सिंक्रोनाइजेशन में। मैन एंड most important factor is this frequency. Now how we can check the frequency? For example, it is a 4 pole generator, it is a 6 pole generator, स्पीड दोनों की अलग अलग रहेगी, वहां से तो हम चेक कर नहीं सकते, but how we check the frequency? For checking of frequency we have a various laboratory method how to check the frequency. One will be the by 3 lamp method, उसमें ऑप्शन आपके पास है either creating one dark or either creating two bright, or by synchronoscope method. How these methods are evaluated? These methods are only to check the frequency. Voltage is calculated by this voltmeter and frequency is calculated by this phase sequence indicator. Easily we can change and put. हमने दो चीजें चेंज कर ली कि बराबर आ रही है। Now जो मेन टास्क है हमारे पास, how we check the frequency, then we go from out of these 3-4 method in one method. किसी एक मेथड में आप जा सकते हो इन तीनों को छोड़ते हुए। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लैंप मेथड लिया है, ठीक है। 3 लैंप मेथड मतलब ये हमारे पास एग्जिस्टिंग ग्रिड है, और वी कैन से एग्जिस्टिंग जनरेटर जो पहले से जनरेटर कर रहा है, ये वो अल्टरनेटर है जिसको हमने इनकमिंग जनरेटर अल्टरनेटर जिसको हमने कनेक्ट करना है। इसके भी 3 टर्मिनल ले लीजिए, इसके भी 3 टर्मिनल ले लीजिए। इसमें से हम क्या करेंगे, इट इज वन डार्क टू ब्राइट। इफ इट इज वन डार्क दैट मीन्स कनेक्ट ओनली वन, दिस विल बी आर वाई बी। आप इसको ध्यान से देखिए, आर वाई बी। मैंने क्या किया, सिर्फ फेस और बी फेस इसका इनकमिंग था, बी इसका इनकमिंग था, इनको डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है लैंप वन से, दैट मीन्स इट इज वन डार्क। और जो टू ब्राइट है उनको अल्टरनेटिवली चेंज कर दीजिए। इसके आर को मैंने कनेक्ट किसके साथ किया है, दिस आर इज कनेक्टेड बाय वाई ऑफ दिस, नहीं दिस, सी दिस, आप यहां से देखिए, इसका वाई हमारे किसके गया, इसके बी से कनेक्ट किया, इंटरचेंज किया है। दैट मीन्स दिस आर कमिंग फ्रॉम दिस साइड गो इनटू वाई, एंड जो ऊपर वाला एग्जिस्टिंग वायर था वो कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड गो टू बी। दैट मीन्स आप सिंपली अगर देखें, ये एग्जिस्टिंग के आर वाई बी है जो हमारे पास जनरेटर है, वन डार्क है, तो किसी एक फेस को आप डायरेक्ट लैंप जोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लैंप जोड़ दिया, दो को इंटरचेंज कर दीजिए, ये लैंप यहां से लग गया है और एक लैंप यहां से लग गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग? किन्हीं दो फेसों को, तो वन डार्क टू ब्राइट। अब आपने क्या करते जाना है, इन लैंपों की ब्राइटनेस को चेक करते जाना है। एक इंस्टेंट ऐसे आएगा कि दिस फॉर एग्जांपल दिस विल बी लैंप वन लैंप टू लैंप थ्री। एक इंस्टेंट ऐसे आएगा कि ये लैंप वन क्या होगा, टोटली डार्क होगा, और ये दो फुल्ली ब्राइट हो गए। उसी टाइम पे आपने क्या कर देना है, इस स्विच को क्लोज कर देना है। कौन से स्विच को? इस स्विच को क्लोज कर देना है। दैट मीन्स एट दैट टाइम दिस विल बी सिंक्रोनाइज विद एग्जिस्टिंग अल्टरनेटर। यू गेटिंग माई पॉइंट? कौन सा पॉइंट आएगा, वन डार्क, जो आपने डायरेक्ट सीरीज में जोड़ा है उस लैंप को फोकस करते जाइए। ये पूरे टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इट विल बी टोटली डार्क, और ये दो जो इंटरकनेक्टेड है ये क्या हो जाएंगे, ब्राइट। और इसका एक उल्टा मेथड है। उल्टा क्या है, दैट इज वन ब्राइट एंड टू डार्क। ऐसा भी आप कर सकते हो। तो उसमें क्या करेंगे आप, अगर वन डार्क और टू ब्राइट है, उसमें कैसे कनेक्शन करेंगे जी, एनी आइडिया? ऑप्शन क्या है, नाउ वन ब्राइट टू डार्क। इसमें क्या करना है हमने, पहला वन डार्क था, मतलब जो डार्क है उसको सीधा जोड़ना है। अब यहाँ पे क्या है, टू डार्क, तो दो को हमने क्या जोड़ना है, दो को डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, दो को डायरेक्ट जोड़ देना है। अगर हम दो को डायरेक्ट जोड़ दे रहे तो तीसरे के लिए तो हमारे पास पॉइंट बचा ही नहीं है। बच रहा है कोई पॉइंट? देखो सिंपल सी यार, टू डार्क अगर हम उसी स्ट्रेटजी में डाले, दो को सीधा जोड़ दिया है, एक के लिए तो बचा ही नहीं, फिर अल्टीमेटली उसको वहीं जोड़ना पड़ता है। दैट मीन्स
कनेक्शन सिमिलर सेम रहेगा वैसे ही, बट आपने इंस्टेंट कौन सा देखना है? इंस्टेंट देखना है आपने जो सीधा आपने जोड़ा हुआ है, ये उस टाइम पे क्या हो, फुली ब्राइट हो और ये दोनों डार्क हो जाए, ये भी और ये भी डार्क हो जाए, उसी टाइम पे आपने इस स्विच को क्लोज करना है। दैट मीन्स डोंट कंफ्यूज इन वन डार्क टू ब्राइट और वन ब्राइट टू डार्क, ओनली डिफरेंस इज brightness and darkness. That means illumination level of bulb, illumination level of these lamp. Or we say that थ्री लैंप मेथड। तो आपने सिंपल एक सिंगल लाइन में याद रखना है कि हमने किसी एक लैंप को डायरेक्ट जोड़ना है और दो को इंटरचेंज करना है, और दोनों में से या तो जिसको डायरेक्ट जोड़ा है, या तो जब वो फुल ब्राइट हो, और दूसरे जब वो एक फुल ब्राइट होगा तो दो टोटली डार्क हो गए, उस इंस्टेंट पे स्विच को क्लोज करना है, या अदरवाइज रिवर्स, दोनों है जो फुली ब्राइट हो और जो सीरीज में जोड़ा है वो डार्क हो, उस टाइम पे आपने स्विच को क्लोज करना है। ये दो पॉइंट हम क्यों लेते हैं कि आपकी अगर ऑब्जर्वेशन में थोड़ी गलती रह जाए, अदरवाइज तो हम फोकस एक ही पे करेंगे, तो आप दूसरों को भी देख सकते हैं भाई इस टाइम फुल ब्राइट है, मतलब इस टाइम पे ये टोटल डार्क होने चाहिए। कई कई बार आपको लग सकता है कि उसमें भी उस टाइम पे थोड़ी सी इल्यूमिनेशन लेवल अवेलेबल है, आप सोच रहे हैं कि यही पॉइंट है जो हमारे पास मैक्सिमम डार्क का होगा, आप उसी टाइम पे दबा देते हैं। उस इंडिकेशन के लिए आपने एक बैकअप रखा हुआ है कि आप दूसरी तरफ भी देखते जाइए कि जिस टाइम पे वो टोटल डार्क है, एंड इट विल दिस प्रोसेस विल अकर वेरी शार्पली। तो आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा, उस टाइम आपने मैनुअली जो स्विच को क्लोज कर देना है, उस टाइम पे ग्रिड के साथ ये कनेक्ट हो जाएगा। नाउ इज इट क्लियर? इज दिस थ्री लैंप मेथड इज क्लियर? यस और नो? Yes. Yes, sir. ठीक है, दिस विल बी Yes, sir. अगेन one another practical, and another is very simple method which is commonly used in all power plants, that is synchronoscope method. I think this what will be the working principle construction of this synchronoscope, you might be studied in course EEMI instrumentation में, आप डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंक्रोनोस्कोप की कंस्ट्रक्शन कैसे करती है, बट एप्लीकेशन इज यूज्ड हियर। इसमें क्या करते हैं आपके पास, दिस विल बी द बस बार मीन जो पहले से ही हमारे पास पावर प्लांट है, एग्जिस्टिंग पावर प्लांट हम लेंगे, दिस विल बी द इनकमिंग, दिस विल बी द इनकमिंग। यहां से आप क्या कर लेंगे, ओनली कनेक्ट एनी टू फेसेस, बिकॉज पहले ही हमारे पास क्या है, सब फेसों में वोल्टेज बराबर है, जो इसके बीच में वोल्टेज है, जो इसके बीच में वोल्टेज है, ऑल आर इक्वल, फेस सीक्वेंस आर ऑलरेडी चार्जेड, ओनली टारगेट इज फ्रीक्वेंसीज। तो किन्हीं दो को भी आप उठा सकते हैं, सेम उसी साइड के आपने किन्हीं दो को उठा लेना है, सिंक्रोनोस्कोप के एक पॉइंट पे ये लगा देना है और एक पॉइंट पे आपने इसको लगा देना है। देन द पॉइंटर ऑन दिस विल बी मूविंग, जो इसमें पॉइंटर रहेगा इट विल बी सम फ्लक्चुएटिंग, कैसे होगा, कभी यहां जाता रहेगा, कभी यहां जाता रहेगा, मूव करता रहेगा, ठीक है। बट वन इंस्टेंट कम व्हेन इट विल बी ट्राई टू स्टेबलेट दिस पॉइंट, इनिशियल ये किसी पॉइंट पे आना, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे आप पॉइंटर पे ये ऐसे ऐसे टिल्ट कर रहा है, तो आपने सिर्फ इस टारगेट को फिक्स करते रहना, जैसे ही इस पॉइंट के आपके पास आया यू हैव टू जस्ट क्लोज दिस ब्रेकर, आपने इस स्विच को क्लोज कर देना, इट इज ए थ्री पोल ब्रेकर, और यू कैन से दैट थ्री पोल स्विच which directly close the this alternator with the grid। बस आपने देखना है कि जैसे ही इस पॉइंट के पास पहुंचा आपने क्लोज कर देना है, बट इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होगी, जब ये फॉरवर्ड में जाएगा इट विल बी गो सम फास्ट, एंड इन बैकवर्ड इट विल बी गो सम लेस स्पीड, it will be go some less speed because it has a some, that means you can say that braking torque, डिफ्लेक्शन ब्रेकिंग आपने टॉर्क पढ़ा होगा, तो इसमें वो टॉर्क थोड़ी एक टॉर्क से कम रहती है हमारे पास, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो ज्यादा रहती है, और ब्रेकिंग टॉर्क हमारे पास कम रहती है जब इसकी कंस्ट्रक्शन आप पढ़ेंगे मैग्नेट में। बट आपने सिर्फ फोकस किस पॉइंट को करना है, इस पॉइंट को फोकस करना है, जैसे ही ये पहुंचा चाहे वो पहले ही टर्न में, और आइदर यू कैन ऑब्जर्व फॉर 4 to 5 टाइम कि ये कैसे टिल्ट कर रहा है, और जैसे ही ये इस इंस्टेंट पे पहुंचे आपने इसको क्लोज कर देना, देन दिस अल्टरनेटर विल बी कनेक्टेड टू द ग्रिड। तो दीज आर द two method, popular method, or either you can divide these two in the further two category, one dark two bright or one bright two dark, but connection will remain same, and another or cheapest method is this synchronoscope method. So this will be the all about our what is parallel operation of alternator, synchronization, condition for synchronization,
need for synchronization, and method of synchronization. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Or any doubt?